and I welcome you all in this online class. So today we are going to start the topic refraction of light through a prism. So let me show the diagram of this refraction through a prism, and the content which I have taken here, it is from NCERT book. Means I have taken this NCERT book. Okay. So I hope it will be helpful for you for the revision. That's why I have taken NCERT book, because each and every student is having this book. So now see here, see this is ABC, this is a prism, means it is a one face of prism. ये prism का एक face लिया है हमने, and see this n and n dash is a normal point. ये जो n और n dash आपको दिख रहा है डॉट 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 जो है ये एक नॉर्मल पॉइंट है और नॉर्मल लाइन है. नाउ दिस इज अ रे दैट इज इंसिडेंट रे. ये जो रे दिख रहा है आपको ये एक इंसिडेंट रे है. वी कैन कॉल इट एज अ PE और PQE. ये जो दिख रहा है आपको ये इंसिडेंट रे है. नाउ what happen when the ray of light is coming from one point to other point? See, this is a normal point n and n dash. So after this point it will bend towards the normal or away from the normal. It depends whether it is coming from rare to denser or from denser to rare. So here it is coming from air to glass, so it will bend towards the normal. Okay, as I already explained the refraction from glass, so it is the same phenomena happening here. Means just outside the glass it is air medium and inside the prism it is glass medium. So when the ray of light is coming from outside to inside, means from air to glass, it will bend towards the normal. So see, this is the incident ray. Just after the refraction from this normal it will bend. See, this is the process. Incident, ये incident ray है. देखो ये जो line दिख रहा है ये incident ray है, और ये जो दिख रहा है that is refracted ray. It is bending towards the normal. ये normal की तरफ bend कर रहा है. Now this is the first stage of refraction. Now in the second stage, means for AC, for side AC, this line is incident ray and this M and M dash is normal line. And when the ray of light is coming out from glass to air, it will bend away from the normal. Okay, so this is normal point and it is bending away from the normal. देखो normal से away जा रहा है. यहाँ पर normal की तरफ आ रहा था जब वो ग्लास के अंदर एंटर किया था इंसिडेंट रे, और जब इंसिडेंट रे ग्लास से बाहर आ रहा है तो ये नॉर्मल से अवे जा रहा है. ओके, सो सी इंसिडेंट रे just after the refraction from M and M dash, it is bending away from the normal. Now this is the refraction inside the prism. Okay, so side AB पे जो refraction हो रही है इसमें ray of light incident ray और refraction bend towards the normal हो रही है, and for side AC के लिए it is bending away from the normal. एक बार towards the normal और एक बार away from the normal. Now just see here, this vertex A and the angle here is called as the angle of prism. Means angle A is called angle of prism. See, it is written here, this is angle of prism. Okay, तो जो भी ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल की जो वर्टेक्स A होगी वो हमेशा एंगल की प्रिज्म की एंगल को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ अब देखो यहाँ पे ये जो इनिशियली जो इंसिडेंट रे था उसको अगर आप बैक साइड एक्सटेंड करोगे, देखो ये मैंने इंसिडेंट रे दिख रहा है आपको और मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया टिल H पॉइंट तक. ठीक है, और जो यहाँ पे लास्ट में जो रिफ्रैक्टेड रे थी उसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया. तो जब मैंने दोनों को एक्सटेंड करा तो ये पॉइंट G पर मीट कर रहा है. देखो इस रे ऑफ लाइट को मैंने एक्सटेंड किया टिल H पॉइंट तक, और फाइनल जो रिफ्रैक्टेड रे था उसको मैंने एक्सटेंड किया G पॉइंट तक. फर्दर एक्सटेंड किया मीन्स G पॉइंट पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो G पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट किए हैं और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल D and it is called as angle of deviation. So what is the meaning of angle of deviation? It means that what will be the angle by which any ray of light will deviate. Means कोई भी ray of light कितने एंगल से बेंड होगी, that is what angle of deviation. Again I am repeating, अगर कोई ray of light एंटर कर रही है ग्लास के अंदर या प्रिज्म के अंदर तो वह कितनी डेविएट करेगी. डेविएट का मतलब कितनी बेंड करेगी.
दैट इज व्हाट एंगल ऑफ डेविएशन। और कैसे निकालते हैं, हम इंसिडेंट रे को और फाइनल रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड करोगे तो वो आपस में इंटरसेक्ट होगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। बाकी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता है, ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। सो जो नई चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, व्हाट इज prism angle, what is angle of deviations, what happened for side AB, what happened for side AC, and the process behind the refraction in a glass prism. So students, in exam it will directly ask question that draw the ray diagram or refractive diagram for prism. So I hope you have understand the refraction process for the prism. Now come for the next topic. See here. तो जो मैंने बातें बोली वो सारी यही चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे. So better to read once so that you will get some more points that will be helpful for 1 marks question. Okay, तो रीडिंग कीजिए, एनसीईआरटी बुक को जितना भी रीड करोगे आपको हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, और जो 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं वो लाइन बाय लाइन रीड करने पे ही आपको क्लियर होगा. Now come for the next topic, that is dispersion of white light by glass prism. मीन्स यहाँ पे देखो एक चीज़ समझ में आ रही है टॉपिक से कि जो वाइट लाइट होती है वो भी डिस्पर्स होती है. डिस्पर्स मतलब टूटना, ब्रेक होना. सो द वाइट लाइट गेट ब्रेक व्हेन इट पास फ्रॉम द ग्लास प्रिज्म. मीन्स अगर आप कोई भी वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराओगे तो वो टूटेगी, वो डिस्पर्स करेगी, ब्रेक करेगी लाइट. सो देखते हैं फेनोमेना क्या होता है इसके अंदर. अगर वाइट लाइट ब्रेक हो रही है तो वो कितने कलर्स में ब्रेक हो रही है, कौन सी कलर पहले आएगी, कौन सी कलर बाद में आएगी, अगर कोई कलर पहले आ रही है तो क्या रीज़न है उसके लिए, ये सारी बातें हम सीखे देखेंगे इस टॉपिक के अंदर. सो सी हियर द डायग्राम. देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक प्रिज्म ले लिया है, जैसे मैंने अभी लास्ट लेक्चर में अभी जो लास्ट टॉपिक के अंदर जो प्रिज्म लिया था सेम यही ग्लास प्रिज्म है. एंड दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. 3 वर्टेक्स है इसके. एंड सी इनिशियली द वाइट लाइट बीम इज एंटरिंग इनसाइड द ग्लास प्रिज्म. एक वाइट लाइट है जो ग्लास प्रिज्म के अंदर एंटर कर रही है. अब देखो एक्चुअली इसे स्ट्रेट जाना था बट ड्यू टू द डिफरेंट मीडियम इट इज बेंडिंग. नाउ सी द phenomena or the statement when a white light beam will pass inside the prism, it will break into 7 bands of color, and that 7 bands of color is called as VIBGYOR. That is VIBGYOR. V stand for violet, I stand for indigo, B stand for blue, G stand for green, Y stand for yellow, O stand for orange and R stand for red. So it is what VIBGYOR means. जो ये white light थी हम कह सकते हैं कि ये white light जो है it is a component of 7 color. इस white light के अंदर 7 colors हैं जो कि break होती है. कैसे? जब हम इसे किसी भी glass prism के पास करेंगे. अब देखो यहाँ पे जो इनिशियली जो सबसे पहली जो लाइट है that is red. तो रेड टू वायलेट है, यहाँ पे बीच में नहीं लिखा हुआ है. इट डजंट मीन कि बस रेड और वायलेट ही कलर है. रेड के बाद कौन सी आ रही है, ऑरेंज आ रही है. ऑरेंज के बाद येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन इंडिगो, देन वायलेट, है ना. ऐसे डिक्रीज हो रहा है, रेड टू वायलेट आ रही है. अब देखो रेड में डेविएशन कम हो रहा है. सी हियर, सी द डेविएशन हियर. इंसिडेंट रे आई, देन आफ्टर द प्रिज्म इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. देखो नॉर्मल से अवे जा रहा है. तो रेड की अगर हम बात करें और वॉयलेट की बात करें, सो द डेविएशन इन द वॉयलेट विल बी मोर. जो वॉयलेट कलर है वो ज़्यादा डेविएट कर रहा है. देखो नॉर्मल से, देखो ये रहा नॉर्मल पॉइंट. नॉर्मल से वॉयलेट की डिस्टेंस ज़्यादा है बट उसी नॉर्मल से रेड की डिस्टेंस कम है. मीन्स वी कैन से दैट द डेविएशन ऑफ रेड कलर इज लेस एज कम्पेयर टू द डेविएशन ऑफ वॉयलेट. तो ऐसा हो क्यों रहा है? नाउ कम फॉर द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस रीजन. देखो ये जो रेड कलर होती है इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है. सो जिस भी कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसमें डेविएशन कम होंगे. वी कैन से दैट wavelength is inversely proportional to the deviation. If wavelength is more then the deviation will be less. देखा होगा आपने लेजर लाइट में क्या होती है कि जब आप लेजर लाइट को जब ऑन करते हो तो वो स्ट्रेट निकलती है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? स्ट्रेट तो निकलती है और मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती है. इट इज ओनली ड्यू टू अ मैक्सिमम वेवलेंथ. तो जिस भी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसमें बेंडिंग फेनोमेना कम होता है और वो मैक्सिमम
डिस्टेंस ट्रेवल करती है. सो द वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट. दैट्स वाई रेड इज लिस्ट डेविएटेड एंड वॉयलेट इज मोर डेविएटेड. एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि कुछ कलर दे देगा आपको, लाइक सपोज कि ग्रीन और ब्लू के बारे में पूछ रहा है, तो ग्रीन और ब्लू में ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? सो ग्रीन विल हैव मोर वेवलेंथ एज कंपेयर टू ब्लू. सो ग्रीन में डेविएशन कम होगी ब्लू के कंपेरिजन में. सो रेड टू ब्लू, रेड टू वॉयलेट वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है और डेविएशन इंक्रीज कर रही है. अगेन आई एम रिपीटिंग, रेड से वॉयलेट के लिए वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है और जो डेविएशन है वो इंक्रीज कर रही है. सो दिस इज द फेनोमेना फॉर द ब्रेकिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 बैंड्स ऑफ कलर एंड इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द वेवलेंथ ऑफ ईच एंड एवरी कलर. हर एक कलर की एक अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. इफ वी विल टेक टू प्रिज्म एंड दैट विल बी इन्वर्टेड फॉर्म, मीन्स एक प्रिज्म और एक इन्वर्टेड प्रिज्म. अगर हम दो प्रिज्म ले लेंगे और उस दोनों प्रिज्म से, मीन्स आउट ऑफ दिस टू प्रिज्म, वन इज इन ए बी सी फॉर्म एंड अदर इज इन बी सी ए फॉर्म, मीन्स एक दूसरे का इन्वर्टेड फॉर्म में ले लेंगे अगर हम. ठीक है. और देन इफ वी विल जस्ट पास द व्हाइट लाइट फ्रॉम दिस टू प्रिज्म, देन व्हाट हैपन. तो देखो, अगर हमने कोई एक इन्वर्टेड प्रिज्म ले लिया है एक प्रिज्म के बाद, तो अगर हम व्हाइट लाइट पास करेंगे यहाँ से, देन इट विल बेंड and it will split into 7 bands of color. Then again that 7 bands of color will enter inside the prism and then it will leave out white color. तो कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर इन्वर्टेड प्रिज्म लिया है आपने एक के दूसरा इन्वर्टेड फॉर्म में, तो जब वो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों की कलर सेम होती है. डिफ्रैक्शन और जो ब्रेकिंग ऑफ व्हाइट लाइट हो रही है, इट इज ओनली फॉर वन प्रिज्म. अब ऐसा नहीं है कि अगर एक ही प्रिज्म आपने लिया है, सपोज कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक प्रिज्म है और वो इन्वर्टेड है, मीन्स सपोज ये वाली प्रिज्म नहीं है, बस ये वाली प्रिज्म है आपके पास, और व्हाइट लाइट पास करोगे तो क्या होगा? डेफिनेटली इट विल बेंड इन, इट विल ब्रेक इनटू 7 बैंड्स ऑफ कलर. अगर एक प्रिज्म है, वो इन्वर्टेड हो या कैसे भी हो, उसमें से जब व्हाइट लाइट पास करोगे तो 7 बैंड्स ऑफ कलर में वो ब्रेक होगी. बट दो प्रिज्म है और पहला प्रिज्म दूसरे के इन्वर्टेड है, तब जो होगी वो व्हाइट लाइट से एंटर करेगी और व्हाइट लाइट लीव आउट करेगा. सो दिस इज व्हाट रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट. नाउ कम फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. एनसीईआरटी के हर एक लाइन आप पढ़ो, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं. जो मैं बातें बता रहा हूँ, दिस आर व्हाट, दिस आर द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंसेप्ट. तो बेटर होगा कि आप इसको एक बार पढ़ो. नाउ सी द रेनबो फॉर्मेशन, हाउ रेनबो विल फॉर्म. देखो यहाँ पे सन की रे आ रही है, द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज व्हाट, इट इज व्हाइट इन कलर. सन से जो रे आती है वो व्हाइट कलर की होती है, और जो ड्रॉपलेट्स होती है, रेन ड्रॉप्स होती है, इट विल जस्ट एक्ट एज अ प्रिज्म. मीन्स बारिश के टाइम में जो ड्रॉप आ रही है, रेन ड्रॉप आ रही है, इट विल जस्ट एक्ट एज अ प्रिज्म. वो प्रिज्म की तरह होती है क्योंकि क्रिस्टल के फॉर्म में होती है वो. नाउ इट इज द सेम फेनोमेना व्हेन द व्हाइट लाइट विल पास फ्रॉम द प्रिज्म, it will break down into 7 bands of color so that we will see the rainbow. So each and every raindrop will act as a prism, and when the sunlight will fall inside the raindrop, it will break down into 7 bands of color, that is Vibgyor. And these all are what, these all are the atmospheric refraction. means atmosphere के अंदर naturally हमारे पास कौन कौन से methods हैं, कौन कौन से phenomena हैं जिसके कारण हम रिफ्रैक्शंस देखते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. ये जो रेनबो फॉर्मेशन मैंने बताया, ये भी एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है. हम नेचुरली इसे देख पा रहे हैं, हमने कुछ ऐसा रेन ड्रॉप क्रिएट नहीं करा है. ऑटोमेटिकली बारिश हुई है और सन से रे आती है, इट इज अ नेचुरल फेनोमेना, एंड आफ्टर पासिंग फ्रॉम द रेन ड्रॉप इट इज ब्रेकिंग इनटू 7 बैंड्स ऑफ कलर. ओके, नाउ कम फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. जो स्टार जो चमकती है, जो ट्विंकल होती है, क्या यहाँ भी कुछ नेचुरल फेनोमेना है? क्या इसके पीछे क्या साइंस है? दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी. मीन्स व्हाट आर द रिफ्रैक्शन बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. नाउ सी हियर, अब समझो इस बात को कि हम जो स्टार देखते हैं वो ट्विंकल क्यों करता है ऐसा. नाउ
दिस इज द व्हाट, दिस इज द स्टार रे पाथ एंड दिस इज द अपरेंट स्टार पोजिशन। ओके, ये हमारा स्टार दिख रहा है आपको, एक्चुअली तो अपरेंट पोजिशन ये है एंड दिस इज व्हाट स्टार रे पाथ पोजिशंस। तो देखो अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार की भी एक खुद की लाइट होती है, और स्टार की जो पोजीशन है और जो ये पर्सन यहाँ पर खड़ा है, कैन वी से दैट दिस मीडियम एंड दिस मीडियम इज हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू। अगेन आई एम रिपीटिंग, जहाँ पर स्टार है वो एक अलग मीडियम है, और जहाँ पर ये पर्सन, ये बॉय जो खड़ा है वो एक अलग मीडियम है ना। जो ऊपर की जो मीडियम है वहाँ पर क्या है, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, और जो नीचे की जो मीडियम है यहाँ पर क्या है, हेट्रो